Summer task of computer for class 3, Allied School, Abdulaziz campus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your class teacher Aniza. I am going to explain the summer task of computer. Hope you are all doing fine. Okay, you all know very well what is computer. Computer is an electronic device which has some input and output devices to solve any kind of problem. Here we will study about the computer fundamentals and devices, the unit 1. The first question is arrange the jumble words. Okay, there are 10 jumble words and you have to rearrange them. Read the unjumbled words carefully and then solve them. Come to the question number 2, that is draw a computer and color it and also label its parts. You have to draw the computer at the end of the summer task where the blank page has been given. Okay, draw it neatly, color it and label its part. You have to draw the main parts of computer. Come to the question number 3, that is choose the correct options and write in space provided. There are 20 MCQs given to you, so you have to choose the correct options from A, B, C and write them in the blank provided. Come to the question number 3. Question number 4, that is answer the following question. The first one is what is power button? So you all know what is power button. It can be that powers an electric device on and off. It can be a power button of anything, but here you will write about the power button of the computer. Computer के power button के बारे में आपने बताना है. Okay. Come to the question number 2, that is what is computer? You have studied before what is computer. Computer is an electronic device. लेकिन अगर आप इसको on page number 5 chapter number 1 computer fundamentals and devices उसको रीड करेंगे तो आपको इसका डिटेल आंसर मिलेगा, तो आपने वही लिखना है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ व्हाट इज CPU? CPU का दूसरा नाम सिस्टम यूनिट भी है, तो आपको पता है इट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इस चैप्टर में जब आप रीड करेंगे तो फिर आपको मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डिफाइन UPS. UPS किसी भी डिवाइस और डिवाइस के साथ हो सकता है, जैसा कि आपके घर में भी UPS है, तो इसी तरह से कंप्यूटर के साथ भी UPS अटैच होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी ना हो आपके पास तो आपका कंप्यूटर ऑन रहे, आपका डाटा वेस्ट ना हो, तो उसके लिए UPS होता है. तो जब आप रीड करेंगे चैप्टर तो आपको आंसर मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय शट डाउन? शट डाउन के बारे में हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था. उसके कुछ स्टेप्स थे हाउ टू शट डाउन योर कंप्यूटर, बस उसी के बारे में आपने बताना है कि उसका क्या मतलब है. Why we use light pen and joystick? Question number 6, why we use a light pen and joysticks? Light pen and joysticks both are input devices. जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ें हैं. Okay, come to the question number 7, that is what is microphone? माइक्रोफोन आपके मोबाइल के साथ भी होता है और आपने देखा हुआ भी होगा कि वो किसके लिए होता है. वो वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए होता है. तो जब आप इसको लिखेंगे तो फिर आपने इसी के बारे में लिखना है. व्हाट आर स्पीकर्स? स्पीकर्स के बारे में भी आपको पता है, जिससे आप आवाज़ें सुनते हैं. ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ क्लिक? व्हेन यू यूज़ अ माउस तो फिर एक क्लिक की आवाज़ आती है, आपने उसी के बारे में बताना है. Come to the question number 10, that is define the following. There are 5 terms you have to define. The first one is the CD, compact disc. Second one is the MU, memory unit. Third one is CU, control unit. D, ALU, arithmetic and logic unit. And E1 is visual display unit. You have to define these terms. तो जब आप चैप्टर को रीड करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा ये क्या चीज़ें हैं.
Come to the question number 11, that is what is RAM. And question number 12, that is what is ROM. Both are belongs to memory. ये memory unit की चीज़ें हैं. That is RAM, read only memory, and ROM, random access memory. तो इसके बारे में भी जब आप कंप्यूटर चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा. कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. तो कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है. तो आप जब चैप्टर रीड करेंगे तो फिर आप उस देख के गाइडलाइन लेंगे. क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट ऑल्सो नेम दैम. अब आपको बताना है कि सिस्टम यूनिट के कितने पार्ट्स हैं और साथ में उसके अपना नाम भी लिखना है. Okay, now come to the question number 15. Name some hardware devices. Hardware devices क्या होती हैं आपने उनके बारे में बताना है, लेकिन आपने यहाँ पे सिर्फ उनका नाम लिखना है. How many parts does a computer have and also name them. कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं आपने उनके नाम लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 17, why we use plotters and pen drives. हम पेन ड्राइव्स और प्लॉटर्स क्यों यूज़ करते हैं आपने ये बताना है. नेम सम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स. जब आप सॉफ्टवेयर के बारे में पता रीड करेंगे चैप्टर में तो फिर आप ये बताएंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूज़ होते हैं. कम टू द क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज़ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ALU. अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का क्या फंक्शन है आपने ये बताना है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी की कितनी टाइप्स हैं ये आपने बताना है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 21, वाई शुड यूज़ द माउस प्रॉपरली. हमें माउस क्यों प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए आपने ये बताना है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 22, वाई शुड यू नॉट पुश द टेबल. आपको टेबल क्यों पुश नहीं करना. इट इज़ नॉट अबाउट द एनी अदर टेबल. ये किसी भी टेबल के बारे में नहीं है, बल्कि जिसके ऊपर आपका कंप्यूटर रखा है उसके बारे में है कि आपको उसको पुश क्यों नहीं करना. कम टू द क्वेश्चन नंबर 23, नेम सम कीज़ प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड. कीज़ के ऊपर कीबोर्ड के ऊपर कितनी कीज़ हैं आपको ये बताना है. दैट्स ऑल. आपका इतना ही समर टास्क है. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स. अपनी स्टडीज़ को टाइम दें, टाइम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना. थैंक यू, गुड लक.